तो ये कहना सही होगा कि you know production and politics not your focus, but would you come back to direction? Not really. I would want to, but not really because इतनी जिम्मेदारी उठानी बड़ी मुश्किल होती है और मैं उस तरह का आदमी हूँ कि फिर नहीं होगा तो फिर मैं कुछ कैसे भी करके कुछ ना तो कुछ करता रहूँगा. I think I'm enjoying my acting now. I'm getting good projects right now. I'm not just making part twos. There are so many different films I'm doing, which gives me a bigger challenge to create a new character and enjoy it. So I'm happy. You mentioned that, so I must say, and you're happy, we are happy because the fans will get to see so much more of you. गदर 2 के सक्सेस ने एक और दुनिया खोल दी आपके लिए. सबको सनी देओल के साथ फिर से काम करना था. उसके पहले भी ऐसा नहीं था कि you were not trying to do things. आपने कोशिश की थी. We'll talk about that later, but first about this, how you got so many offers and then you took a step back and then you thought कि नहीं, सोच समझ के ये कॉल लेते हैं. That is why projects like Jat happened, and then of course we'll have Border 2 and so many more. तो हम लोग ऑफिस से धीरे-धीरे बात तो करनी पड़ेगी उसकी. इस जनता ही है जो वो चाहती है वो उसको आगे लेके आती है और उसी वजह से I'm there right now and और मुझे मालूम है जो सिनेमा में करता था उन्हें पसंद था, जिस तरह के कैरेक्टर्स को जिस तरह से मैं लेता हूँ, टेक देम अहेड. तो I was always confident about the people, जनता जो पिक्चर देखती है. लेकिन वो अभी पिक्चर चलने से the confidence has come within the industry. So now they feel confident enough that they can risk on me. So I think that's how they have started, coming out. Okay, we can try out with Sunny also. And you're getting some more projects from different quarters which I hadn't got earlier on. Definitely. सक्सेस ऐसी हुई कि जाट 2 तुरंत ही अनाउंस हो गई. Definitely, because that वो कैरेक्टर बहुत प्यारा है. And I love those producers and the director. They are good, and I enjoyed it was a great journey for those 6-7 months when I was with them, and we would want to repeat it again and again. Because you're talking about action, I must say, you went from being this very shy person to becoming something else on screen for years now. क्या वो आपका आउटलेट होता था? क्या वो आपकी then you didn't have to be that shy awkward person, socially जो awkward person थे. Do you think that helped you also eventually? I think an actor is basically जब हम कुछ भी मैं अपने आप के बारे में यही कह सकता हूँ. Whenever I portray characters, there's a lot of me into it. Then only I can something about that because हर इंसान के अंदर हर तरह के इमोशंस हैं, हर तरह के डिज़ायर्स हैं, हर तरह की नफ़रत, सब चीज़ें हैं हर आदमी में. पर जब आपको कैरेक्टर मिलता है तो वहाँ पर आपको मौका मिलता है उस चीज़ की सच्चाई को बाहर निकाल के उसे मेक इट बिलीवेबल. तो दैट्स व्हाई आई लव दिस प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग. कि इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब. इट्स समथिंग वेयर यू आर वर्किंग एंड हम लोग फिर 24 घंटे भी काम करते हैं. ये नहीं देखते गर्मी है सर्दी है. पहले तो बोलेंगे नहीं यार गर्मी है, पर जब करना है तो करते रहते हैं, महीनों करते रहते हैं. आई थिंक वी आर ब्लेस्ड. I'm very happy that I'm an actor and I'm getting to do so many things. कहते हैं सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स आपको सिखाती है. आपके जो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं दिया, आपने क्या सीखा उनसे? और वही चीज़ जब आप देखते हो कि आपके बेटे जो जिन्होंने they've also debuted here, they've done their whole thing, they also get that perspective, right? What did you tell them about ये जो इंडस्ट्री है जहाँ पे हमेशा हर कोई ऊपर नहीं रहेगा? See, my children have grown up शुरू से साथ में ही रहे हैं, so they know, देख रहे हैं. जैसे I knew how it was growing up in the family. तो ये रियलिटी ऑफ लाइफ है. इसको लेके चलना पड़ता है और कब कहाँ किस तरह से चीज़ आगे निकलेगी, क्या होगा, उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता. तो इसलिए नेवर से कि थिंक अबाउट कि ये पिक्चर चली नहीं तो ऐसी पिक्चर नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है. पिक्चर सब में हर आदमी की एनर्जी जाती है, अच्छी होती है. हाँ, उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती. समटाइम्स उस वैसी फिल्म का फ्लेवर नहीं चल रहा होता.
बट अगर आपकी फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है, अच्छी बनी है, आज नहीं चल रही स्क्रीन पर फिर देन अदर इतने फॉर्मेट्स हैं वहाँ चलती है जी और वहाँ चलती है, तो फिर अगली बार आपकी कोई फिल्म आती है तो वो लोग बोलते हैं नहीं भाई ये पिक्चर हम जाके स्क्रीन में ही देखेंगे, पिछली बार नहीं देखी क्योंकि वो भी अच्छी फिल्म थी. सो दिस इज़ हाउ आई थिंक चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं. तो देयर इज़ नेवर कि आपने कुछ ऐसा किया जो नहीं ठीक था, नहीं था. हाँ, हम जब उसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस से तोलने लग जाते हैं कि वही सक्सेस है, दैट इज़ बिकॉज फ्रॉम दी प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू जी कि उसने कितने पैसे लगाए, कितने उसने कमाए. एंड देन अगेन इट्स अ सॉफ्टवेयर विच इज़ देयर फॉर लाइफ. तो ये तो इट विल कीप मिल्किंग आफ्टर जी, फ्यू ईयर्स एंड बिल्कुल. फ्यू ईयर्स एंड फ्यू ईयर्स. तो वो है. और उसके अलावा डेफिनेटली जिस तरह से अभी आजकल पूरी दुनिया देखती है अरे पिक्चर का बॉक्स ऑफिस क्या है, तो वो देखना बंद कर दें और जाके पिक्चर देखें. और मैं हमेशा फैंस लोगों से कहता हूँ कि दूसरों के ओपिनियन पर आप क्यों चलते हैं, अपना ओपिनियन बनाओ. तो वेरी क्योंकि, नाइसली पुट. हाँ, आप खाना खाओगे, आपको टेस्टी लग रहा है लेकिन दूसरे का अच्छा नहीं है तो आप नहीं खाओगे. तो ये चीज़ें आई जस्ट फील कि ठीक है. I mean, that's another profession where is there, but the genuine cinegoers, the genuine people who know about the cinema, should not even look into what anybody is saying or what any critic is saying or anybody, because they should make their own opinion from the trailer, how they feel about it, because trailer बता ही देता है फिल्म में क्या है, छुपाता तो है नहीं, आपको झलक दिख जाती है. पैपराज़ी के साथ आज रिश्ता कैसा है? आई रिमेंबर एक वीडियो आई थी लास्ट टाइम जहाँ पे आई थिंक दे वर ट्राइंग टू क्लिक यू एंड देन देयर आर पीपल हु आर वेटिंग आउटसाइड टू क्लिक यू एंड देन दे राइट ओज यू नो मिस्टर देओल इज मेरा कुछ ऐसा वैसा नहीं है. मेरा रिश्ता सही है. कभी कभी ऑब्वियसली आजकल हर आदमी के एज अ फोटोग्राफर हर आदमी के पास कैमरा है तो वो मोमेंट कभी ऐसा पकड़ लेते हैं उसके पीछे क्या था वो नहीं उनको पता होता. तो फिर उसके बारे में हम रोक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं. तो अगेन बीइंग एन एक्टर के अंदर आप पेशेंस सीखते हो. सो बीइंग पेशेंट एंड बीइंग कंट्रोल ओवर योर पेशेंस इज द थिंग व्हिच वी लर्न, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट because you have to absorb everything like a shock absorber. Well put. Yeah. आपने अपनी ज़िंदगी जी है. You know, I think even in college you lived your times. You've been आप गुस्सा आता था तो आपने गुस्सा दिखाया. You've gotten into fights as well. We must tell people this story. I've lived वही मैं बच्चों को कहता हूँ आज कि live according to your age and enjoy that moment because you will never be that age again. So grown up मत बनो. Enjoy your moments of life and अभी फिलहाल I mean basic things is खाना ये नहीं खाना वो नहीं खाना ये वर्कआउट करना वो वर्कआउट करना है. I mean अभी भी मेरा दो दिल करता है खाता हूँ जो करना है वो करता हूँ. तो कभी उस वक्त तो हम इतना खाते थे इतना पीते थे कि कभी सोचते ही नहीं थे कि मोटा हो रहा हूँ ये हो रहा हूँ because we used to play a lot burn out करते थे. तो ये नहीं था कि आजकल तो ये खाना अच्छा नहीं है वो नहीं है ऑर्गेनिक. अभी ऑर्गेनिक एक फैशन बन चुका है. अभी ऑर्गेनिक है या नहीं है किसी को नहीं पता बट लेबल लग गया उसके ऊपर. एंड माय बेसिक थिंग वुड बी टू आउट देयर टू द वर्ल्ड इज द पीपल जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं जो मिलावट करते हैं जो गलत चीज़ें करते हैं और अपनी फैमिली के साथ जी रहे हैं अपने बच्चों के साथ जी रहे हैं और बड़े खुश हैं उनको सही रखते हैं और बाकी के फैमिलीज और बच्चों का वो फिर सोचते नहीं है बिकॉज उनको पैसे बनाने हैं. आई थिंक ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको बंद करना चाहिए. बिल्कुल. No, and like you always said, you've been very against the steroid and the abuse of drugs. जब building bodies. I'm against it because you see हर चीज़ का एक चीज़ लिमिट होती है. It's abusing it and taking it for the wrong reasons and shortcuts of life are not. मैं चॉपर लेके माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाऊं तो मैंने क्या अचीव किया. बिल्कुल सो ट्रू. पर आपके उसूल आपके ब्रांड एंडोर्समेंट्स में भी होते हैं. यू नो यू डोंट एंडोर्स अल्कोहल या टोबैको उस तरह की चीज़ें. मुझे लगता है आपका ये जो यू नो यू हैव अ कनेक्शन विद द ऑडियंस एंड यू रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू होल्ड एज वेल. एम आई करेक्ट? दिस इज समथिंग व्हिच पहले तो एकदम obviously जो हमारी सभ्यता उसी हिसाब से हम लोग चल रहे थे. बट एज टाइम वेंट बाय एंड सडनली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग इट इज़ व्हेन
the youngsters came up to me, they said, I saw this film and I started doing this and I became this. Then I started to realize, oh shit. कौन सी फिल्म थी सर? एक तो बॉर्डर थी और भी जितनी बाकी कितनी और भी फिल्में हैं where they turn out कि I've started doing this, I believe in honesty, I believe in this, I believe in that. जब you meet these younger kids and the people who are so happy and proud कि we took a right decision and because of this film or because of that, then you start becoming really responsible कि we are affecting them so unknowingly, हमें नहीं पता. So then obviously then आप फिर सोचने लग जाते हो कि मैं जो कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, उसकी फिर जिम्मेदारी आई जाती है.